चाहता हूं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और परमेश्वर का भी हम धन्यवाद करते हैं। You know, we've been looking from the scriptures, and our topic or the subject under which we are meditating is what does it mean to follow Jesus? और हम वचन में से देख रहे हैं और जिस श्रृंखला के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह का अनुसरण करने का क्या मतलब है। You know, we have seen a lot of subtopics under that, and we understood that, you know, when we say that we are Christians, when we say that we are following Jesus Christ, what are the things that we should keep in our minds? और हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर बातचीत करी है और इन बातों को हमने देखा है कि जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं तो किन बातों को हमें अपने जहन में रखने की जरूरत है। And I do believe that God is talking to each one of you, and I do believe that God is equipping you through His scriptures as you meditate and as you hear from His words. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सब से इन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं अपने जीवन को किस प्रकार जीना है। To simply say, you know, Bible is a set of principles, you know, a rule book that God has given to us through which we can come closer to Him. अगर हम साधारण तरीके से कहें तो जो बाइबल के वचन है वो एक तरह के सिद्धांत है कि हमें अपने जीवन को मसीह के तौर तरीकों से किस प्रकार जीना चाहिए। You know, God wants us to have a close relationship with Him, and that's why He has given us His living word through which we can know Him more and more. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक बहुत ही नजदीक का रिश्ता बनाकर रखें और इसीलिए उसने हमको अपना जीवित वचन दिया है जिसके द्वारा हम उसको और अच्छे से You know, when you read in Genesis chapter 1 itself, we know that God has designed or God has created man to have fellowship with Him. यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में शुरू में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की कि वो उसके साथ एक No, रिश्ता He बना सके। created us in His form, in His likeness. God has put His attributes into us. और उसने हमें अपने समान अपने स्वरूप में बनाया है और उसने अपने चरित्र हमारे अंदर डाले हैं। He wanted to have an intimate relationship with us, a fellowship with us where, you know, we can have communion with Him. और वो हमारे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाना चाहता है जिसके द्वारा हम उसके साथ मेल मिलाप कर कर रह सकें। But you know, right, how sin entered into humankind, and how because of sin we have been separated from God. We have been, you know, we have been set apart, we have been removed from the presence of the Lord. लेकिन आप जानते हैं कि किस प्रकार पाप हमारे जीवन में आया और हमारे को परमेश्वर से दूर कर दिया, हमारे रिश्ते में एक दरार उसने डाल दी। You know, but even before sin entered into humankind, God made an institute where God blessed man and woman to be together in one relationship. लेकिन इससे पहले कि पाप मनुष्य के जीवन में आ सके, परमेश्वर ने एक संस्था को स्थापित किया जहां उसने मनुष्य को इकट्ठा लाकर अपने लिए उसने एक योजना बनाई। You know, so when we see Bible, from the very first page of Bible, we read about family. और यदि हम बाइबल में देखते हैं तो उसके पहले अध्याय से ही हम एक परिवार के बारे में जानना शुरू You know, करते so हैं। today, as we understand what does it mean to follow Jesus, we are looking into relationships in terms of family. और आज जब हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि यीशु मसीह का अनुसरण करने का क्या मतलब है, आज हम रिश्तों के ऊपर, परिवार के ऊपर बातचीत You know, करेंगे। as I said, family is an institute that has been designed by God, and He wanted it to be a beautiful relationship. और जैसा मैंने आपको बताया कि परिवार एक संस्था है जिसे ये एक बहुत ही सुंदर संस्था हो। You know, God saw Adam being alone, and God thought it's not good for a man to be alone, and that's why He created a suitable partner for him. परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम अकेला रहे और इसीलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया। You know, and He brought them together, and He blessed them, and He said them to go, multiply, and rule the earth. और परमेश्वर ने उनको इकट्ठा किया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनको कहा कि तुम जाओ, फूलो फूलो और इस पृथ्वी पे हर चीज के ऊपर अधिकार You पाओ। know, we also see how Satan entered into that relationship, and through that sin came into the world. और हम जानते हैं कि किस प्रकार से शैतान जो है इस रिश्ते के बीच में आ गया और उसके द्वारा किस प्रकार से पाप मनुष्य जीवन में You आया। know, he deceived Eve into disobeying God, and you know, Adam and Eve, then they disobeyed God, because of which they were driven away from the presence of God. और उसने हवा को ललचाया कि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे और फिर हवा और आदम ने मिलकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया जिसकी वजह से उनको वो अदन की वाटिका से निकाल दिया। My dear church, God created family
to, in order for us to live in that structure and to glorify God. परमेश्वर ने परिवारों की स्थापना इसलिए की कि हम उस संस्था में रहकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। As we go further, we understand that this relationship or this relationship between husband and wife is been, well established even in New Testament also. और जैसे हम आगे जाके अध्ययन करेंगे, हम देखते हैं कि ये जो परिवार के अंदर पति और पत्नी का जो रिश्ता है, इसको नए नियम के अंदर भी बहुत अच्छी And तरह से बताया very गया है। beautifully, especially in New Testament, this relationship is been compared to Jesus and the church. और नए नियम में ये जो रिश्ता है, इसको यीशु मसीह और कलीसिया के साथ साझा किया गया है। Jesus being the groom and the church being the bride, which is been getting ready for the great marriage, the feast which is to happen when Jesus comes back. और वहां पर यीशु मसीह को एक दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है और कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है, जो कि तैयार की जा रही है ताकि एक बहुत बड़ा जो आयोजन किया गया है, एक बहुत बड़ा जो फीस्ट है जिसका आयोजन किया गया, उसमें वो शामिल हो सके। If you read Genesis chapter 2 verse 24, the verse it says, that is why, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. और उत्पत्ति 2 उसके 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। And this is the design in which God has created family, my dear friends. When we come together as husband and wife, God wants us to become one flesh. और यही वो डिजाइन है जो परमेश्वर ने परिवारों के लिए बनाया है। जब हम पुरुष और स्त्री जो है जब एक होकर आते हैं, परमेश्वर ने उन्हें एक देह का रूप दिया है। We will study about one flesh later on this sermon, but I want you to understand that such godly families are very important for a healthy Christian life. और हम एक देह के बारे में आगे अभी और भी अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो ईश्वरीय परिवार है या परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया परिवार है, वो बहुत जरूरी है। You can see on the screen, some data that has been, surveyed, and people say 2/3 of Christians came to faith before the age of 18. और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है। 2/3 मसीह लोग जो थे वो परमेश्वर को या मसीह को उन्होंने 18 साल की उम्र तक या उससे पहले जान लिया। 43% of the current Christians, they have accepted Jesus Christ even before they cross the age of 12. और अभी के जितने मसीह जन हैं उनमें से 43% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12 साल की उम्र से पहले मसीह को ग्रहण किया। Less than 1/4 of people are able to accept Jesus Christ after they cross the age of 21. और ऐसा कहा जाता है कि 1/4 से कम लोग हैं जो कि मसीह को 21 साल की उम्र के बाद ग्रहण करते हैं। Which means, it clearly tells us that family is the place where the gospel works efficiently and it helps the next generation to accept Jesus Christ. और यह हमको सही रीति से बताता है कि परिवार ही वो जगह है जहां पर परमेश्वर का वचन अच्छे से बताया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा जो अगली जनरेशन है उसको परमेश्वर के बारे में जानने के लिए मदद करता है। That's why, my dear church, this relationship of husband and wife is very important, and we as Christians should understand what the scripture is telling us about this. और इसीलिए प्रिय कलीसिया, ये परिवार और परिवार में पति और पत्नी का जो रिश्ता है ये बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए हमें जानने की जरूरत है कि वचन हमको इसके बारे में क्या बताता है। Open your Bibles to Ephesians chapter 5. आप इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय खोल लीजिए। Ephesians chapter 5 has the golden principle of a family, especially a husband and wife. और इफिसियों की जो पत्री है उसका 5वां अध्याय, इसमें परिवार के लिए स्वर्णिम मूल और सिद्धांत बताए गए हैं। When you read from verse 21 toward the chapter, you understand how Paul is explaining the roles and the responsibilities of husband and wife towards each other. और यदि आप इसमें 21वीं आयत से अंत तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि पति और पत्नी के रिश्ते और उनका उत्तरदायित्व एक दूसरे के प्रति क्या है। So the first thing that we are going to look today is for wives. और सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे यहाँ पर वो पत्नियों के विषय में है। All the sisters, all the married sisters, those who are here, please give your keen attention towards the word. और हमारे बीच में जितने भी विवाहित महिलाएं हैं वो इसको बड़े ध्यान से सुने। Verse 22 to 24, let me read for all of you. It says, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord.
For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. और यहाँ 22 से लेके 24वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पतियों के प्रति ऐसे समर्पित रहो जैसे तुम प्रभु को समर्पित होती हो, क्योंकि अपनी पत्नी के ऊपर उसका पति ही प्रमुख है, वैसे ही जैसे हमारी कलीसिया का सिर मसीह है, वह स्वयं ही इस देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। When Paul talks about this relationship, he first brings, the instructions for the ladies or for the wives towards their husbands. और जब पौलुस यहाँ पर इस प्रकार परिवार के बारे में बातचीत करता है, तो वो सबसे पहले महिलाओं के लिए या पत्नियों के बारे में विषय में बताता And है। sadly, this is one of the most misunderstood scriptures in the Bible, which people take in extreme ways to subdue women or to talk against the scripture. और ये दुख की बात है कि इस वचन को बहुत अलग रीति से और अलग ढंग से समझा गया है और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से लोग पत्नियों के ऊपर दबाव डालते हैं या उनके ऊपर अपनी प्रभुता रखने की कोशिश But करते I हैं। want you to take your attention to verse 21 there. लेकिन यहाँ पर मैं 21वीं आयत की ओर आपका ध्यान It केंद्रित says, करता हूँ। submit to one another out of reverence for Christ. और यहाँ पर लिखा है कि मसीह के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ। So the verse 21 is not specifically written for the ladies, it has been written for everyone. और यहाँ पे जो 21वीं आयत है वो केवल पत्नियों के लिए या महिलाओं के लिए नहीं लिखी गई है, वो सबके लिए लिखी गई है। So Paul wants each one of us believers in Christ to submit to one another. और पौलुस यहाँ पर चाहता है कि हम में से हर एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाए And to each other, to one another. और एक दूसरे के प्रति भी समर्पित हो जाए। It tells us that we will have humility, we will have humbleness, and we will not boast about ourselves. We will have a collective opinion for everything that we do. और वो कहता है कि आपके पास एक नम्रता आएगी, आप दीन हो जाओगे और आप एक दूसरे के प्रति दया दृष्टि से देखोगे। After saying that, then he brings the ladies, he brings the wives, and he says, submit to your own husbands. और उसके ये कहने के बाद वो पत्नियों के विषय में बातचीत करता है और कहता है कि अपने अपने पति के प्रति समर्पित हो जाओ। And to make that understand, he says, as you do unto the Lord. और इस बात को समझाने के लिए वो बताता है कि जिस प्रकार तुम प्रभु को समर्पित करते हो। We all submit ourselves to the Lord, right? और हम सब अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। If you are not submitting or if you are not surrendering ourselves to God, it means we are not true believers. यदि आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित या अपना समर्पण परमेश्वर को नहीं किया है, तो हम सही मायने में विश्वासी नहीं हैं। That's why Paul is saying, wives, as you have submitted yourselves to the Lord, submit also to your own husbands. और इसी प्रकार से पौलुस कह रहा है कि पत्नियों, जिस प्रकार से तुमने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है, अपने अपने पति को भी समर्पित करो। So my dear church, if you have submitted yourselves to the Lord, it will be very easy for you to submit to your husband. और इसीलिए प्रिय कलीसिया, यदि आपने अपने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप अपने पति को भी अपने आप को समर्पित कर। Which means submitting to God means that we follow His principles, we follow His commandments. और परमेश्वर को समर्पित होने का मतलब है कि हम उसके सिद्धांतों को मानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। And this is the commandment from the scripture. It's commandment of the word of God, so that it will be easy for us to submit or to surrender or to submit ourselves to our husbands. और ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के वचन में से ये दिया गया है, इसीलिए हमारे लिए आसान होना चाहिए कि हम अपने आप को एक दूसरे को समर्पित करें या पत्नियां अपने आप को पति को समर्पित But करें। it's human nature, right? Like we don't want to be submitted to anybody. लेकिन ये मनुष्य का चरित्र है, मनुष्य का व्यक्तित्व है कि हम अपने आप को किसी के अधीन नहीं करना चाहते।
You know, चाहते the world says, be your own boss. हैं। और जो वचन है, जो जगत है, ये संसार हमको बताता है कि तुम अपने खुद के मालिक बनो। You know, hear your heart, you know, do what you wish to do, don't listen to others. वो हमको इस प्रकार से बताता है कि अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारे मन में आती है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करो, एक किसी दूसरे की मत सुनो। But Bible tells us a different story. लेकिन वचन हमको कुछ दूसरी बात बताता है। As you have submitted yourselves to the Lord, also ladies submit to your own husband. जिस प्रकार तुमने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है, हे पत्नियों, अपने पतियों को भी अपने आप को समर्पित You know, and करो। also I can say that if the husband is a good person, you know, he's perfect in everything, it's easy for you to submit yourselves to him, और right? हम कह सकते हैं यदि पति जो है एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है, तो उसके अधीन या अपने आप को समर्पित करना आसान हो जाता है। But sadly, that's not the reality for, I can say, all the ladies. लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर एक महिला के लिए संभव हो कि उनका पति जो है एक अच्छा व्यक्ति है। Your husband will be, you know, he'll be difficult in many areas of the life. हो सकता है आपके पति के साथ जो रिश्ता है अलग अलग सिचुएशंस में बहुत मुश्किल और कठिनाई भरा भी हो You know, सकता you है। want to do things in a way, but he wants to do things in a different way. हो सकता है आप किसी काम को किसी अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन वो उस काम को अपने तरीके से करना You चाहता know, you है। want to plan to go out to somewhere, and you know, you have some opinion, he has some other opinion. हो सकता है कहीं बाहर जाने के लिए आपका अपना कोई मनसा हो या विचार हो और उसकी अपना कोई अलग से You know, विचार हो। all the decisions that you take in your family, it is filled with difficulties only. और हो सकता है आपके परिवार में जो भी आप निर्णय लेते हो वो मुश्किल से भरा हो। But you know, the word of God says, wives, submit yourselves to your husbands as you do unto the Lord. लेकिन परमेश्वर का वचन फिर भी हमको बताता है कि पत्नियों अपने आप को अपने पति को समर्पित करो, जिस प्रकार तुम परमेश्वर को समर्पित You know, करते when हो। you read the next verse, you can see it on the screen. You know, you must consider your husbands as the head of your family. और अगला जो वचन है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहां पे कहता है कि तुम अपने पतियों को अपना सर के समान मानो। You know, then Paul says, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the savior. और पौलुस जिस प्रकार से कहता है कि जो पति है वो पत्नी का सर है, जिस प्रकार से मसीह कलीसिया का सर है। You know, wives, all the ladies, you should understand this, that in your house, your husband is the leader. और महिलाओं, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके परिवार में आपका जो पति है वो मुखिया है। You know, because the example that Paul is given here is that for church, for CGC, for any God-fearing church, the head of the church will be Christ alone, right? लेकिन पौलुस यहाँ पर हमको जिस प्रकार से उदाहरण देता है कि किसी भी कलीसिया के लिए, किसी भी परमेश्वर का भय मानने वाली कलीसिया के लिए यीशु मसीह जो है वो उसका सर है। Likewise, in your family, regardless of the situations, regardless of the circumstances, you should consider your husband to be the head of the family. और उसी प्रकार आपको अपने परिवार में परिस्थितियों को परे हटाकर, परिस्थितियों के बजाय आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपका जो पति है वो प्रमुख है या मुखिया है। You know, it's so easy for all of us. You know, I'm not only talking about ladies, but here, since it's talking about ladies, let me say it's easy for you to be influenced by somebody else, you know, some other person, some other man, by seeing the way that they live or the way that they, you know, run their family. और महिलाओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये आसान होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे पुरुष को देखकर प्रभावित हो जाती है, जिस प्रकार से वो अपने परिवार का संचालन You करता could है। say, see, look at that man, how good job he has, how much he is earning, how beautifully he has constructed his house. What are you doing? और आप इस प्रकार से अपने पति के साथ बातचीत करते हो सकती हैं कि उस व्यक्ति को देखो कि वो कितना अच्छा कमाता है, कितना अच्छा उसने रखा है, अपने घर को कितना अच्छा बनाया है, और आप क्या कर रहे हैं। You know, you should understand, my dear church, God has given this particular man to be the head of your family, and you should be under him alone. और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दिया है, इस पुरुष को दिया है कि वो आपके परिवार का मुखिया हो सके और आपको उसको अपने आप को उसको समर्पित You know, it करना है। doesn't mean that the man will have any sort of life that he will live, and you know, you will have to tag along with him. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरुष है वो किसी भी प्रकार का जीवन वो जीना चाहता है, जी सकता है, और आपको उसके अधीन होकर ही चलना है। That's why Paul has given Jesus Christ as an
perfect example for this matter. और इसीलिए पौलुस ने यीशु मसीह का उदाहरण दिया है इस रिश्ते को समझाने के लिए। Paul says Christ is the head of the church. और पौलुस कहता है कि मसीह जो है वो कलीसिया का सर है। So what has Christ done for the church? तो मसीह ने कलीसिया के लिए क्या किया है? Christ has loved the church. मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। Christ has sacrificed himself for the church. मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है कलीसिया के लिए। Christ had set apart this church for his own glory. मसीह ने इस कलीसिया को अलग करा है ताकि उसके द्वारा अपनी महिमा करा सके। And he is preparing this church to be his bride. और वो इस कलीसिया को तैयार कर रहा है ताकि वो उसकी दुल्हन बन सके। Christ is head of the church because he has done all these things for the church. और मसीह जो है वो कलीसिया का सर है क्योंकि उसने कलीसिया के लिए ये सब काम किए। So when I am telling all the ladies to consider your husbands as the head of the family, I also want to tell all the men to be a suitable head for the family. और जिस प्रकार से मैं महिलाओं को कह रहा हूं कि अपने अपने पति को अपने परिवार का मुखिया वो जाने या सर जाने, उसी प्रकार से मैं पुरुषों को भी, पतियों को भी कह रहा हूं कि वो अपने आप को एक योग्य मुखिया या एक योग्य सर के समान जाने। Somebody said like this, right? If husband is the head of the family, which means wife is the neck of the family. और किसी ने इस प्रकार कहा है कि यदि जो पति है वो अगर परिवार का सर है तो जो पत्नी है वो उसका गर्दन है, गला है। Where the neck turns, there the head moves, right? तो गर्दन जिस तरफ को भी घूमेगी, जो सर है वो उसी तरफ को घूमेगा। So ladies, you still have the control over the head, but let him be the head and let him take the lead for you. तो इसीलिए महिलाएं आप जाने कि आपको अभी भी जो सर है उसके ऊपर अभी भी आपका जो प्रभाव है वो है, लेकिन फिर भी आप सर को सर ही रहने दीजिए और आप अपने आप को उसको समर्पित Don't कीजिए। try to be the head of the family. लेकिन आप उस परिवार का जो है वो सर बनने की कोशिश ना करें। Maybe you can help your husband in assisting him, to take good decisions for the family. हो सकता है आप अपने परिवार में अपने पति की मदद करें ताकि वो अपनी परिवार के लिए अच्छे निर्णय ले सके। But give him the honor that God has asked you to give in the scriptures. लेकिन वो आदर और सम्मान जो परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा उनको देने के लिए बोला है वो आप दीजिए। And I want to, before going to the matter of husbands, I want to say a few things to the sisters over here. और पतियों के विषयों पे जाने से पहले मैं जो पत्नियां हैं और जो बहनें हैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहूंगा। In the next screen you can see, some things that we need to consider. और कुछ बातें जो हमें सोचनी और ध्यान में रखने की जरूरत है। This type of submission is required only in marriage. इस प्रकार का जो समर्पण है वो केवल विवाह के दायरे में ही होना It चाहिए। doesn't mean that you have a male boss in your office and you have to surrender to everything that he is telling you to do. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऑफिस में आपका कोई एक पुरुष है जो आपका बॉस है और आपको उसके अधीन होकर रहना है और जो कुछ वो कहता है आपको करने की जरूरत है। Being submissive to one man in your life. और केवल एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष के प्रति आपको अपने परिवार में या अपने जीवन में उनके समर्पित करना है। And the next thing, it is about submission, it's not about slavery. और ये समर्पण का विषय है, ये दासत्व का विषय नहीं है। You should understand that you are being submissive doesn't mean that your husband can take grant of you and he can do anything that he wishes to do. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अपने आप को समर्पित करते हैं तो आपका पति कुछ भी जो चाहे वो कर सकता है। इस बात का आपको ख्याल रखने की जरूरत है। Submission doesn't mean that you should remain in an abusive relationship. और समर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अपमानजनक रिश्ते के अंदर आप साझा करते हैं। Personally we have experienced from some families where the husband is so cruel, the husband is so abusive, and we have to tell them to be set apart because that is not the scriptural way of a family. और हमने खुद इस बात को देखा है और गवाही दी है इस बात की। कुछ परिवारों में जो पति है वो बहुत ही अपमानजनक रिश्ते में था और बहुत ही गलत तरीके से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता था और हमें उनको कहना पड़ा कि वो अलग होने पाए। You should not say that Bible says, Pastor, that I should be submitted to my husband, so let him kill me, no problem, I will be submissive to him. That is wrong from your end. तो ये बात कहना जो है गलत होगी कि आप कहेंगे कि वचन बताता है कि मुझे अपने पति के अधीन या समर्पित होकर रहना है, तो वो अगर मुझे मार भी डाले तो भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने आप को समर्पित करके ही रहूंगी। ये गलत है। And one more important question that will come to all of our minds, what about my unbelieving husband? और एक और सवाल जो हमारे हृदय में होता है वो ये है कि यदि मेरा पति जो है वो अविश्वासी है तो उसका क्या?
after marriage, I came to know Christ. Now what should I do? और आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि मैं शादी करने के बाद यीशु मसीह को जानी हूं, तो अब मैं क्या करूं? I believe in Christ. I come to church, but my husband does not believe in Christ. Should I be submissive to him? मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं, लेकिन मेरा पति जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। क्या मैं अपने आप को उसको समर्पित करके रहूं? Read this verse. It's very beautiful. In 1 Corinthians chapter 7, Paul says, and if a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him, for the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. तो यहाँ पर पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय की 13 और 14 जो आयत है इस प्रकार कहती है, ऐसे ही यदि किसी स्त्री का कोई ऐसा पति है जो पंथ या विश्वासी नहीं है किंतु उसके साथ रहने को सहमत है, तो उस स्त्री को भी अपना पति त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वह अविश्वासी पति विश्वासी पत्नी के निकट संबंधों के कारण पवित्र हो जाता है, और इसी प्रकार वह अविश्वासिनी पत्नी भी अपने विश्वासी पति के निरंतर साथ रहने से पवित्र हो जाती है। What does this verse means? तो इसका क्या मतलब है? You know, if you have an unbelieving partner, by your faithfulness, by your prayer life, God is slowly working in their lives, and God will bring them also into his family. अगर आपका कोई अविश्वासी पार्टनर है, आपका पति या पत्नी जो अविश्वासी है, तो परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता से और आपके प्रार्थना भरे जीवन से उसको अपने समीप, अपने निकट लेकर आता It है। doesn't mean that those who are unmarried can easily go and marry an unbeliever. इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप किसी भी अविश्वासी से जाकर शादी कर सकते Bible हैं। talks against that. और जो वचन है वो इसके खिलाफ हमको But बताता है। after marriage, you have started to believe in Jesus Christ, but your partner is not. You can still live with that person, and through your faithful life, he will also be saved, God willing. one लेकिन day. विवाह के बाद यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और आपके पति ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, तो आप विश्वास योग्यता से उसके साथ रह सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा आप उसको प्रभु यीशु मसीह के निकट लेके आ सकते So, हैं। my dear sisters, those who are married, understand this, that God has given you these principles to be submissive to your husbands and to consider him as the head of your family. प्रिय बहनों जो कि विवाह कर चुके हैं, इस बात को ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने आपको एक रिश्ते में डाला है और आपको जो पति दिया है उसको इसलिए दिया है कि वो आपके परिवार का मुखिया हो सके, परिवार का सर हो सके और आप अपने आप को उसको समर्पित In कर सकें। Ephesians 5:24 it says, so now as church has submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. इफिसियों 5 और उसकी 24वीं आयत इस प्रकार से कहती है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियों को सब बातों में अपने अपने पतियों के प्रति समर्पित रहना My चाहिए। dear sisters, by being, by obeying these words or by being submissive to your husbands, you reflect the godliness that God has put in you. और प्रिय बहनों, जब आप इस आज्ञा को पालन करते हैं और अपने आप को अपने पतियों के समर्पित करके रखती हैं, तो आप परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है वो अपने जीवन के द्वारा दर्शाती हैं। So now comes, now Paul talks about husbands. और अब पौलुस यहाँ पर पतियों के विषय में कहता है। From verse 25 onwards, you can see the first thing that I want to talk to husbands is you must love your wife sacrificially. और पतियों के विषय में यहाँ पर पौलुस हमको बताता है कि पतियों को अपनी पत्नियों से बलिदान पूर्वक प्रेम करना Now चाहिए। verse 25 says, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. और 25वीं आयत कहती है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम करो वैसे ही जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए बलि दे दिया। Husbands have this commandment from God that you all should love your wives more than yourself. और पतियों के लिए ये निर्देश है वचन में से कि आपको अपनी पत्नियों से उस प्रकार प्रेम करना है जैसे मसीह ने किया और अपने से बढ़कर प्रेम करना है। If you see both the responsibilities of wives and husbands
is so difficult to execute. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्नियों की और पति की जो उत्तरदायित्व है वो बहुत कठिन है, वो बहुत मुश्किल है उसका पालन करना। To be submissive to someone is very difficult. और किसी के प्रति समर्पित होना ये बहुत मुश्किल है। And to love someone more than you love yourself is even more difficult. और किसी को इस प्रकार प्रेम करना कि अपने से बढ़कर उसको प्रेम करना ये और भी कठिन है। But here also Paul is, giving Christ as an example. लेकिन यहाँ पर पौलुस हमें यीशु मसीह का उदाहरण देता है। He says, just as Christ loved the church. और उसने कहा है कि जिस प्रकार जैसा यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। We know how Christ revealed his love for us, right? और हम जानते हैं कि मसीह ने अपना प्रेम कलीसिया को किस प्रकार जाहिर किया। He brought himself down in the form of human, and he born on this earth, and he lived among us. और वो अपने आप को एक बालक के समान इस धरती पर लेकर आया, एक मनुष्य के समान वो हमारे बीच में रहा। So God, being God, he left all his glory, and if he can come down to be a form of man, we as humans can tag along or to live along with our partners without any difficulties. और परमेश्वर होने के नाते वो फिर भी इस संसार में, इस धरती पर मनुष्य के समान आ गया हमारे खातिर, तो हम भी अपने अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Christ's love, the love of Christ for the church was revealed through his birth. और परमेश्वर का जो प्रेम है अपनी कलीसिया के लिए वो उसके जन्म के द्वारा हम देख सकते हैं। And he says, and he loved the church and he gave himself for the church. और ये कहता है कि वो कलीसिया से प्रेम करता था और उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। And it was revealed on the cross, right? He gave himself, he gave his own life for the sake of us. और ये हमको क्रूस पर दर्शाते हैं कि उसने अपना प्राण कलीसिया के लिए दे दिया। My dear church, we were assigned for that. We were assigned for that eternal death. But Jesus took it on himself and he has redeemed us. और प्रिय कलीसिया, जो अनंत काल की मृत्यु थी, जो दंड था वो आपका और मेरा था, वो क्रूस हमारे लिए था, लेकिन यीशु ने वो हमारे से ले लिया और हमको उस पे से छुड़ा दिया। But we as husbands, many times we cannot tolerate small mistakes that our wives commit, right? लेकिन एक पति होने के नाते शायद हम अपने पत्नियों की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं या गलतियां हैं उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। We take it into our hearts and we act very rashly against their mistakes. और हम उन बातों को अपने हृदय में रख लेते हैं और अपनी पत्नियों के साथ बुरा सलूक करते हैं या व्यवहार करते हैं। We talk bad about them if they do any small mistakes also. हम उनको बहुत बुरा भला कहते हैं यदि वो छोटी मोटी गलतियां भी कर देती हैं। But Paul is saying, love your wife just as Christ has loved the church and has given himself for the church. लेकिन पौलुस कहता है कि अपनी पत्नियों से उस समान प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। My dear church, loving someone sacrificially is never easy, but all the married men are called to do that. किसी को बलिदान पूर्वक प्रेम करना आसान नहीं होता, लेकिन हर उस पुरुष को जो विवाह के बंधन में है उसको ऐसा करने के लिए बुलाया गया है। You are called to protect your wife. और आपको अपनी पत्नी को की रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। You are called to provide for your wife. आपको अपनी पत्नी को प्रोवाइड करने के लिए, उसको जो चीजें हैं, जो जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए बुलाया गया है। You are called to be with your wife when she is going through difficult times. आपको बुलाया गया है कि आप अपनी पत्नी के साथ खड़े रहें जब वो मुश्किल समय में से होकर जाती है। That is what the relationship that God wants us to have, my dear church. और इस प्रकार का रिश्ता जो परमेश्वर चाहता है हम अपने परिवारों में रखें। Maybe your wife is not acting the way you want her to do. और हो सकता है कि आपकी पत्नी उस तरह से आपके साथ व्यवहार ना करती हो जैसा आप चाहते हैं। But God has called you to love her sacrificially. लेकिन परमेश्वर ने बुलाया है कि आप उसको बलिदान पूर्वक प्रेम कर सके। Now, sacrificial love will not bring any other third person into the marriage. और जो बलिदान पूर्वक वाला प्रेम है वो किसी तीसरे व्यक्ति को आपके जो परिवार के संबंधों के बीच में नहीं लाने देगा। I want to ask this question to all the men. Are you being faithful to your wives? और मैं हर एक पुरुष से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हैं? Bible says God is being faithful to us. और वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास And योग्य if है। you are called to love your wife,
as God loves the church, you are also called to be faithful to your और wife. यदि आपको अपनी पत्नी के समान उसी समान प्रेम करने के लिए बुलाया गया है जिस प्रकार से मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, तो आप भी विश्वास योग्यता के लिए बुलाए गए You know, if you can love your wife sacrificially in this manner, it will be easy for her to be submissive to you. और यदि आप अपनी पत्नी से इस प्रकार बलिदान पूर्वक प्रेम कर सकते हैं, तो वो भी आपके प्रति उसी रीति से समर्पित रहेगी। Which lady would not want a loving husband, right? कौन सी ऐसी पत्नी है जो एक प्रेम करने वाला पति ना चाहेगी? If you are so loving to her, she will be with you, she will love you more, and she will do anything that you want her to do, and your family will be a strong and a beautiful और family. यदि आप अपनी पत्नी से उसी समान से प्रेम करेंगे, तो वो भी आपसे उसी रीति से प्रेम करेगी, और आपका जो परिवार है एक खुशहाल प्रेम करने वाला परिवार The second thing बनेगा। I want to talk to the husbands is you must understand your duty. और दूसरी बात जो मैं पतियों से कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व You know, समझना है। here Paul specifically he talks about the spiritual duties of a husband. और यहाँ पर पौलुस जो है पतियों की आत्मिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात You know, he करता है। says, you know, especially he's talking in the figurative sense of a church, but it applies to the family also. He says, to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. वो कलीसिया के बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन वो परिवार के संबंध के बारे में भी बता रहा है। और इस प्रकार से वो 26 और 27 आयत में कहता है, ताकि वह उसे प्रभु की सेवा में जल में स्नान करा के पवित्र कर हमारी घोषणा के साथ परमेश्वर को अर्पित कर दे। इस प्रकार वह कलीसिया को एक चमचमाती दुल्हन के रूप में स्वयं के लिए प्रस्तुत करता है, जो निष्कलंक हो, झुर्रियों से रहित हो, और जिसमें ऐसी और कोई कमी ना हो, बल्कि वह पवित्र और सर्वथा निर्दोष हो। My dear church, do you understand this word? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? Husbands, do you understand this word? पति लोग, क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? God has called you to prepare your family to be a beautiful, holy and blameless one in front of the Lord. परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप अपने परिवार को तैयार कर सके, ताकि वो परमेश्वर के समान पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक रहे। My dear church, if the man of the house is following God, it's easy for all the house members to follow God. यदि जो घर का पुरुष है वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर का अनुसरण करता है, तो पूरा जो परिवार है वो परमेश्वर के पीछे आ जाता है। Just like Jesus is cleansing us right now, as we grow in him, he is cleansing us. Likewise, husbands are called to help their wives to grow in the Lord. जिस प्रकार से यीशु मसीह हमारे को साफ सुथरा कर रहा है, पवित्र कर रहा है, जैसे हम उसके वचन में बढ़ते हैं, उसको और जानते हैं, वो हमको पवित्र कर रहा है, उसी प्रकार से पतियों को बुलाया गया है कि वो अपने पत्नियों को पवित्र करें और उनको परमेश्वर के रास्ते में You know, बढ़ाएं। on the day of judgment, when Jesus sits on the throne, the church will be presented in front of him as a beautiful bride. और जब वो निर्णय का दिन आएगा, जजमेंट का दिन आएगा, जब यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठे होंगे, तो जो कलीसिया है वो उसके सामने एक सुंदर दुल्हन के समान प्रस्तुत की जाएगी। And this bride will have no stain, no wrinkle, no any blemish, but it will be filled with holiness and it will be blameless. और ये जो दुल्हन है उसमें कोई भी दाग नहीं होगा, वो निष्कलंक होगी और वो पवित्र और बिना झुर्रियों के वो प्रस्तुत की जाएगी। And that is the comparison that God is giving to us husbands in the way that we should prepare our wives. और यही वो तुलना है जो कि परमेश्वर हमको दे रहा है पतियों को, कि वो अपनी पत्नियों को किस प्रकार से देखें। Imagine that you are standing in front of the Lord on the day of judgment. आप इस बात को सोचिए कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं उस निर्णय के दिन में, उसके सिंहासन के सामने। And God is asking you, I have given you so and so as life partner, where is she? और परमेश्वर आपसे पूछता है कि मैंने आपको इस व्यक्ति को दिया है आपकी पत्नी के रूप में, वो कहाँ है? And you are presenting your wife to the Lord. और आप अपनी पत्नी को परमेश्वर के सम्मुख लेके आते And हैं। you are telling her, Lord, see, this is the one whom you have given to me, and I have helped her to grow in you. And here she is. We are together in the presence of you as holy and blameless. और आप परमेश्वर को अपनी पत्नी को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ये वो है जिसको आपने मुझे दिया था और मैंने इसको आपके रास्ते में बढ़ने के लिए मदद की है, और हम दोनों मिलकर आज आपके सामने हैं विश्वास योग्य और पवित्र। But husbands, I want to ask you, how much do you think
about helping your family to grow in the Lord. और पति, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना आप इस भविष्य में सोचते हैं कि आप अपने परिवार की मदद करें परमेश्वर के रास्तों में बढ़ने Yes, के लिए? it's true that you have to provide for the family, you have to work hard, you have to look after your children's education, everything is true. But this is also very important. What are you doing about this? हाँ, ये सही है कि आपको अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, मेज़ पे खाना लाना है और आपको कमाना है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उनको परमेश्वर के रास्ते में कितना बढ़ाते Do हैं। you follow any spiritual discipline in your house? Do you ask your children to come to the table for prayer before they eat the food? क्या आप अपने परिवार के अंदर कोई भी आत्मिक रीति से सिद्धांतों का पालन करते हैं? क्या आप अपने परिवार को एक साथ बांट के एक साथ जोड़ के रखते हैं और खाने के समय या अलग अलग समयों पर आप प्रार्थनाओं में इकट्ठा होते हैं? You know, ever since we got a child, my wife is always reminding me about this thing, and she is telling me that you should make sure that your son is learning from you, that you set an example for him, how he should live, how he should grow in the Lord. और जब से हमारे घर में भी एक बालक आया है तो मेरी पत्नी मुझे बार बार इस बात को याद दिलाती है कि मुझे उसके लिए एक उदाहरण रखने की जरूरत है और मुझे उसको परमेश्वर के रास्तों में बढ़ाना है कि किस रीति से वो परमेश्वर को जान सके और उसके करीब आ सके। My dear men, understand your duties in your family. और पुरुष लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपना उत्तरदायित्व अपने परिवारों में उस बात को जानें। Help your wife to grow in the Lord. अपनी पत्नियों की मदद करें ताकि वो परमेश्वर For में बढ़ that, सके, first of all, you have to grow in the Lord. और उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर में बढ़ सके। Ask God's help to grow yourself in the Lord and also your family. आप परमेश्वर की मदद मांगे कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप परमेश्वर में बढ़ सके और अपने परिवार को भी परमेश्वर में The बढ़ा third सके। thing about husbands is you must love your wife as your own body. और तीसरी बात जो पतियों के लिए है वो ये है कि आप अपनी पत्नी से उस समान प्रेम करें जैसा कि आप अपनी देह से करते हैं। Verse 28 says, in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. 28वीं आयत कहती है कि पतियों को अपनी अपनी पत्नियों से उसी प्रकार प्रेम करना चाहिए जैसे वह स्वयं अपनी देहों से करते हैं। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से ही प्रेम करता The है। moment you got married to your wife, she is your body now. जिस क्षण आपका अपनी पत्नी के साथ विवाह हुआ वो आपकी देह का हिस्सा बन That's जाती what है। it's written in Genesis 2:24, which we read in the beginning, right? Therefore, a man and woman would come together and they will be one body. और उत्पत्ति में शुरुआत में हमने इसी बात को हमने पढ़ा कि इसीलिए एक पुरुष और स्त्री इकट्ठे होकर आएंगे विवाह में और वो एक देह बन जाएंगे। But husband and wives are two different people, right? But God is telling us to come together as one body. और जो पति और पत्नी है वो दो अलग अलग जन है, दो अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन दोनों को एक होकर एक देह के समान आना चाहिए। Being submissive is difficult. और जो समर्पित होकर रहना जो है वो मुश्किल है। To love somebody more than you love yourself is difficult. और किसी को अपने से बढ़कर प्रेम करना ये और भी मुश्किल है। And here it says to be one body is the most difficult thing that you could ever do. और यहाँ पर वो कहता है कि आपको एक देह के समान होकर रहना है, ये सबसे कठिन बात है जो आप कर सकते हैं। Two different mindsets, two different characters, behaviors coming together as one body. How difficult that is to come together, right? दो अलग अलग व्यक्तित्व, दो अलग अलग देह, दो अलग अलग सोच विचार के लोग एक देह में होकर कैसे आके रह सकते हैं। But Paul is saying, if you want to love your wife, love her as your own body. लेकिन पौलुस कहता है कि यदि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहते हो उसे अपनी देह के समान प्रेम करो। And he says, if you love your wife as your own body, then only you are loving yourself. और वो कहता है कि जब तुम अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करते हो तो तुम अपनी देह से ही प्रेम करते हो। My dear church, this kind of love is more difficult to execute. और प्रिय कलीसिया, इस प्रकार का जो प्रेम है ये बहुत कठिन है इसको करना। But men, I want to challenge you to love your wives in this way. लेकिन पुरुष, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नियों से इस समान प्रेम करें। Let go of all the shortcomings that you find in your wife. और अपनी
अपनी पत्नियों में जो भी आपको कमियां नजर आती हैं उनको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। If she is not a good cook, forget about it, no problem. If you can teach her to be a good cook. और यदि वो अच्छा खाना नहीं बनाती है तो उसको आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। और यदि आपको खाना बनाना आता है तो आप उसको सिखा सकते हैं कि खाना बना If she सकते हैं। doesn't know how to manage money, teach her how to manage money. यदि उसको पैसा खर्च करना या उसको संभालना नहीं आता है तो आप उसको सिखाइए कि किस प्रकार संभाल सकते If she हैं। doesn't know how to keep the house clean, teach her how to keep the house और clean. यदि वो घर को साफ नहीं रख सकती है तो आप उसको सिखा सकते हैं कि घर को साफ कैसे रखें। But you are called to love your wife as your own body. लेकिन आपको बुलाया गया है कि आप अपनी पत्नियों से अपनी देह के समान प्रेम करें। Nobody wants to hurt our own body, right? और कोई भी अपनी देह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। But imagine the words that we say towards our partners. और ये बात को सोचिए कि हम कई बारी अपने पतियों को या अपनी पत्नियों को किस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं, How hardly we talk about them. और कितना कठोर होकर हम उनसे बातचीत करते हैं। How sometimes we even use bad words. We even say so much bad things about them. It means you are saying those things towards yourself. और कई बारी हम उनको बहुत ही बुरा भला कहते हैं, बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप इस बात को सोचिए कि आप वो शब्द अपनी देह के लिए या अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। When you consider your wife to be your own body, you are saying that there is nothing that will come in between us. और जब आप अपनी पत्नी को अपनी देह के समान मानते हैं या उसको जानते हैं तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप दोनों के बीच में आ सकती है। No person should come between both of you. आप दोनों के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। I remember the day I got married. और मैं उस दिन को याद करता हूँ जिस दिन मेरी शादी हुई थी। Pastor George Herman, the pastor of DBF Church, he came to जॉर्ज हरमन जो थे वो हमारी शादी कराने के लिए आए थे। and everything was done, and before he was going, he wanted to take a picture with both of us. और सब कुछ हो गया था और इससे पहले कि वो जाए वो हम दोनों के साथ एक फोटो लेना चाहते So थे। he came and asked me, can I take a picture with both of you? और उसने कहा कि क्या मैं आप दोनों के साथ एक फोटो ले सकता हूँ। So I said, yes, pastor. And Rebecca was standing here and I was standing here, and I told him, please come in between of us. और इस प्रकार से मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था और मेरी पत्नी एक जगह पे खड़ी हुई थी। मैंने पास्टर को बोला कि आप हमारे बीच में यहाँ पर आ जाइए। Then he said, are you stupid? You be with your wife, I will stand beside you. And he said, remember Manoa, never bring a third person between you. तो उन्होंने मेरे को कहा कि क्या तुम मूर्ख हो। उन्होंने मेरे को कहा तुम अपनी पत्नी के साथ खड़े हो और इस बात को हमेशा याद रखना कि आप अपने और अपने पत्नी के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें। My dear church, it's just for a picture. If that person is telling don't be separate or don't bring anyone in between you, how much more we should be careful when we live our day-to-day lives. तो यदि केवल एक फोटो के लिए, एक पिक्चर के लिए वो मेरे को कह रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बीच में ना आने दीजिए, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कितना सावधान होने की जरूरत है। Just as I said to the ladies, I want to tell to the men also, don't compare your wives to somebody's wife. और जिस प्रकार मैंने पत्नियों को कहा, मैं पतियों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी पत्नियों को किसी दूसरे के साथ तुलना ना करें। Never do that. किसी भी समय ऐसा ना करें। God has given this beautiful woman for you to be your only wife. Love her more than you love yourself. और परमेश्वर ने आपको इस व्यक्ति को दिया है आपकी पत्नी के रूप में, आप इसको हर एक चीज से बढ़कर प्रेम करें। That's the way that God wants man to love his woman. और यही वो तरीका है कि परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नियों से प्रेम रखे। And I just want to take few more minutes to talk about children also. और मैं कुछ समय लेना चाहता हूं कि मैं बच्चों के बारे में बातचीत करूं। When you go to next chapter, Ephesians chapter 6, और यदि आप इफिसियों की पत्री उसके 6ठे अध्याय में जाते हैं, after talking about husband and wife, Paul now he's talking to the children. और वो पति और पत्नी के बारे में बोलने के बाद पौलुस अब यहाँ पर बच्चों के विषय में बातचीत करता So है। the children, those who are listening to me, all the teens or young persons, I want to tell you, you have to obey to your और parents. सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको अपने अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना Paul चाहिए। says in Ephesians chapter 6 verse 1, he says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. और पौलुस यहाँ पर 6ठे अध्याय की पहली आयत में कहता है, हे बालकों, प्रभु में आस्था रखते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यह उचित है। Hallelujah. हालेलुया। Now for children, Paul's instruction is very clear. This is the right thing to do.
obey your parents. और पौलुस की जो बच्चों के लिए जो आज्ञा है या जो निर्देश है वो बहुत साधारण और सीधा साधा है कि ये जो बात है ये सही है, अच्छी है, करने योग्य, अपने माता पिता की आज्ञा का You know, पालन करो। sometimes children, when they reach their teenage, when they, reach 14, 15, 16, they turn to be a rebellious one, right? और कई बार ये होता है कि जब बच्चे लोग जो टीन्स की एज में आ जाते हैं 14, 15, 16 साल के, वो अपने माता पिता के खिलाफ हो जाते हैं। They feel like they know everything. They can conquer the world. They don't need the help of their parents anymore. और वो सोचते हैं कि वो उनको सब कुछ पता है, वो इस संसार को जीत सकते हैं, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। They become disobedient to their parents. और वो अपनी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर देते But हैं। children, I want to tell you, the word of God is telling you to be obedient to your parents because that is the right thing for you to do. लेकिन बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ऐसा करना सही है। Maybe your parents are not like Shah Rukh Khan, who can be so influential, and when you go out with them, people will appreciate you. Maybe your father is a normal day-to-day worker, but you are called to obey your parents. और हो सकता है आपके माता पिता जो है कोई बहुत ही बड़े नामी व्यक्ति ना हो, शाहरुख खान की तरह ना हो, बहुत से लोग जानते हो सकते हैं आपके पिता एक साधारण व्यक्ति हो, लेकिन आपको कहा गया है कि आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है। I know because I have also gone through that phase. I know when parents teachers meeting would happen in school, we don't want to bring our parents to school because we feel like, what will my friends think about my parents? What will they think about my parents? We as teenagers, we go through this. Bible is telling you, obey your parents. और मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं इस अवस्था से होकर जा चुका हूं। अक्सर ऐसा होता है कि हम स्कूल में जब हमारी मीटिंग होती है तो हम अपने माता पिता को नहीं लेकर जाना चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे मित्र जो है वो क्या सोचेंगे, हमारे माता पिता कैसे दिखते हैं। लेकिन हमको परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना The second thing I want to talk to the children is honor your parents. और दूसरी बात जो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं वो ये है कि अपने माता पिता का आदर करो। It's written, honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. So what is the promise? It's written there, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. और यहाँ पर उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अपने माता पिता का सम्मान कर, यह पहली आज्ञा है जो इस प्रतिज्ञा से भी युक्त है, तेरा भला हो और तू धरती पर चिरायु हो। How important it is that of all the promises that God has given, this is the first promise, the first commandment which has a promise along with it. और ये कितना जरूरी है इस बात को जानना कि परमेश्वर ने जितनी भी आज्ञाएं दी हैं उन सब में से ये पहली आज्ञा है जिसके साथ एक वचन है, एक प्रॉमिस भी है। When you honor your parents, when you honor your father and mother, God is going to bless you. जब आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। What kind of blessing is there for obedience and being honorable, and honoring your parents? और किस प्रकार की आशीष है जो परमेश्वर देता है जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं? That you will be good in all that you do. और आप उस हर एक काम में आप भले रहेंगे और अच्छे रहेंगे। And you enjoy the long life on this earth. और इस पृथ्वी पर तुम्हारी जो आयु है वो लंबी होगी। If you want to have a healthy life, my dear children, I want to tell you, obey your parents, honor your parents. और प्रिय बच्चों, अगर आप अपने इस जीवन को अच्छा, लंबा और स्वस्थ चाहते हैं तो आप अपनी माता पिता का आज्ञा मानें। This is one time that I preach here, but I want to challenge the parents. I want to challenge father and mother to teach this to your children in day-to-day life so that they can understand the scripture and walk accordingly. और ये आज मैं एक बारी इस बात को प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं माता पिताओं को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस बात को निरंतर अपने घरों में सिखाते रहें ताकि वो आगे चलकर इस बात को समझें और इसमें बने रहें। Quickly, let's go to the responsibilities of parents also. और हम माता पिताओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उत्तरदायित्व है, उसको भी देख लेते हैं। In one word, in chapter 6 verse 4, Paul says, fathers, do not exasperate your children, instead bringing them up in training and instruction of the Lord. और चौथी आयत में, 6 अध्याय की चौथी आयत में यहाँ पर पौलुस कहता है, और हे पिताओं, तुम भी अपने बालकों को क्रोध मत दिलाओ, बल्कि प्रभु से मिली शिक्षा
और निर्देशों को देते हुए उनका पालन पोषण Though it talks towards the fathers only, but it includes the parents. You know, father and mother both should follow this. यहाँ पर वो पिताओं के बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माता पिता दोनों का उत्तरदायित्व है, उन दोनों को इस बात को समझना जरूरी है। Don't irritate your children. अपने बच्चों को आप क्रोध मत दिलाओ। No, don't put them under unnecessary burdens. उनको जो है बेफिजूल के जो बोझ हैं उनके ऊपर मत डालो। No, you also don't compare your children to others' children. आप अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ ना करें। Don't be mean to your children. आप अपने बच्चों के लिए बुरा मत सोचिए या बुरा मत You कीजिए। know, sometimes we really try to be mean to our children, right? कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में अपने बच्चों के साथ बुराई कर बैठते हैं, You know, and we talk bad about them. और हम उनके लिए बुरा भला भी कह देते No, हैं। you can never succeed. You can never pass. You can never do good in your life. हम इस प्रकार से उनको ताने मारते हैं कि आप कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, आप पास नहीं हो सकते हो, अपने जीवन में आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। When the exam time comes, you know, you put them under lot of stress. Study, study, study. You have to pass with good marks. You put them under pressure. और जब उनका एग्जाम का टाइम होता है तो बहुत अधिक प्रेशर हम उनके ऊपर डाल देते हैं कि बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है, अच्छे नंबर लाने की जरूरत है, और आपको अच्छे से पास होने की जरूरत है। Paul is telling to all the parents that you should not do these things, rather you should teach them about the Lord. और पौलुस यहाँ पर हमको बता रहा है कि हमें इस प्रकार से अपने बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करना, लेकिन हमको उनको परमेश्वर के रास्ते में बढ़ाने की You know, in the जरूरत है। next slide you see, you know, we are called to teach them about the Lord. और हमें बुलाया गया है ताकि हम उनको परमेश्वर के बारे में बता You know, सकें, you are the missionaries for them. और आप अपने बच्चों के लिए एक मिशनरी के You know, समान we हैं। saw the data in the beginning of the sermon, right? Under the age of 12, 43% of Christians have accepted Jesus और Christ. हमने जैसे शुरुआत में देखा 43% लोग इस प्रकार के हैं जिन्होंने 12 साल की कम उम्र में यीशु मसीह को जाना, Because the parents have worked on the children. क्योंकि उनके माता पिताओं ने उनके साथ काम किया, Teach them about the Lord. उनको यीशु मसीह के बारे में बताइए। More than teaching them, show them how to follow Lord. और सिखाने से बढ़कर उनको ये दिखाइए कि यीशु मसीह को किस प्रकार से आप अनुसरण करते हैं, Because they see you and they follow you. क्योंकि वो आपको देखते हैं और वो आपका अनुसरण करते हैं। And that's why you should be a godly example for your children. और इसीलिए जरूरी है कि आप एक ईश्वरीय या परमेश्वर का उदाहरण आप उनको दिखा You know, सकें। there is an author called Steve Chang. He wrote about parents in this way. और स्टीव चैंग करके एक ऑथर है जिन्होंने जो माता पिता हैं उनके बारे में इस प्रकार Now you लिखा। can read it on the screen. It says, one of the biggest mistakes I have seen among those who have a heart for the lost is that they don't see the children in their own church as lost. Every child, even the cute ones on Sunday schools, needs the gospel. Our goal is not just to get the children into church, but into Christ. So if the church is to be missional, let's be missional with those closest to us, the ones already within the church तो walls. स्टीव चैंग कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं उन लोगों के साथ या जिनको हम देखते हैं जिनके हृदय है, जो लोग खो गए हैं या गुम हो चुके हैं, उनके लिए उनके हृदय में बहुत बोझ है, लेकिन ये जो बोझ है वो अपनी कलीसिया में अपने बच्चों के लिए वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो भी गुम हैं। हर एक बच्चा जितना भी सुंदर क्यों ना हो जो हमारे संडे स्कूल में आता है, उनको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है वो केवल बच्चों को कलीसिया में लाना नहीं है, लेकिन बच्चे को मसीह में लेकर आना है। तो इसलिए यदि हमारी कलीसिया को एक मिशनरी कलीसिया होना जरूरी है, तो हमें उन लोगों के लिए मिशनरी बनना जरूरी है जो हमारे पास हैं, जो हमारे साथ है, जो कलीसिया के अंदर है। Can you all just turn back and see what's happening behind? क्या आप सब पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि पीछे क्या हो रहा है? What's happening there? There are some, small kids who have been taught by those teachers how to love Lord, how to grow in their faith. ये हमारी कलीसिया के छोटे बच्चे हैं जिनको टीचर्स जो हैं परमेश्वर के बारे में बता रही हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रही हैं, और विश्वास में कैसे बढ़ना है उसके बारे में बता This रही is हैं। just 1 to 2 hours of their
of their week actually. ये एक हफ्ते में 1 या 2 घंटे का समय होता है जो वो यहाँ पर इस प्रकार But बिताते the rest of their lives, they live with you parents. हैं और जो उनका बाकी का जीवन है वो आपके साथ परिवार के बीच में बिताते हैं। What are you doing for them? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? How are you helping them to grow in the Lord? आप उनकी मदद किस प्रकार से कर रहे हैं कि वो परमेश्वर में बढ़ सके? What kind of atmosphere you create in your house for your child to grow in the Lord? आपके घर का वातावरण किस प्रकार का है कि आपका बच्चा जो है वो परमेश्वर में बढ़ सके? If your child can read, are you asking your child to read the scriptures? अगर आपका बच्चा जो है पढ़ सकता है तो क्या आप उसको वचन से पढ़ने के लिए बोलते Do हैं? you teach your child how to pray? क्या आप अपने बच्चे को प्रार्थना करना सिखाते हैं? Parents, you are called to be missionaries to your own children. और माता पिता आपको बुलाया गया है कि आप अपने बच्चों के लिए एक मिशनरी के समान हो So जाएं। let's summarize what we learned today. तो आज की जो हमने बातें सीखी हैं उनको हम एक सारांश में देखेंगे। A godly family is the one where the wife submits herself to the authority of her husband, और एक ईश्वरीय परिवार उस प्रकार का परिवार है जहां पर एक पत्नी अपने आप को अपने पति के प्रति समर्पित करती है and respects him, और उसका आदर करती है, and the husband loves his wife more than himself, और जो पति है वो अपनी पत्नी को अपने से बढ़कर प्रेम करता है, ready to do anything for his wife, वो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है and prepares her for the Lord. और उसको अपनी पत्नी को परमेश्वर के लिए तैयार करता है। Both understand the importance of being together as one body, और दोनों इस बात का महत्व को जानते हैं कि एक देह के समान होकर उनको जीना है which brings glory to God and fulfill their duty as parents. और ये परमेश्वर को महिमा देता है और उनका उत्तरदायित्व एक माता पिता का होने का पूरा करता By है। raising their children in a godly way, where the children obey and honor their parents. और वो अपना बच्चों का पालन पोषण जो है एक ईश्वरीय तरीके से करते हैं जहां पर बच्चे अपने माता पिता की बातों को मानते हैं और उनका आदर करते हैं। My dear church, this is a beautiful family that God wants all of us to have. और प्रिय कलीसिया, ये वो सुंदर परिवार है जो परमेश्वर चाहता है हम सब के पास हो। Let's all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's pray for